Hello, my dear and sincere students. First of all, I wish you all the best for your bright future, and I hope that definitely you are doing a lot of work for your better performance. As you know that I have completed some important points of grammar at length, and definitely you must watch all those videos. I assure you that you will learn something special from my all those videos. Okay, and today first time I am entering into the section of literature for class 10th with the poem Fire and Ice. But before I teach this poem at length in detail, I want to tell you a brief introduction about the poet Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. And one more fact about the poet is that this poet was called as a nature poet like William Wordsworth. Okay, and you know that this poet has composed several types of poem on different topics. Okay, so some of them I want to mention before you, but first of all I ask you one question. Can you recall the poem which you learned last year in ninth standard? Can you recall that one? Okay, can you recall? Just okay, I will tell you the road not taken. This poem was also composed by this poet, and definitely you must enjoy this poem. There is full of inspiration, there is full of motivation. Okay, now one more poem is that is also important poem and very interesting poem, very inspiring poem which I like most. That is stopping of words on snowy evening. This poem was also written by the same poet, and this poem is full of inspiration. Okay, and you know that this poem ends with four lines. These four lines are very powerful, very inspiring, very motivating, and I think that very boosting to all of you. Okay, the woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. आपको एक बात बता दूँ इस पोइम के बारे में, इन चार लाइंस के बारे में, कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा इन चार लाइंस को अपने टेबल पर रखते थे और रोज़ देखते थे, वो इनसे इन चार लाइन से इंस्पायर होते थे. अंडरस्टूड. एंड फिर से मैं रेड कर दूँ, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन्स है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. डेफिनेटली यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस लाइन्स, यू मस्ट बी मोटिवेटेड फ्रॉम दिस लाइन्स. ओके, now I am telling you the introduction to the poem. This poem was composed by Robert Frost, the American writer. The poem expressed the deep idea that the whole world would perish either by ice or by fire. These two emotions are very powerful. Okay, these two emotions can destroy the whole earth at a time. Both the elements are very powerful to destroy the world. These two components are compared with self-destructing human emotions, hatred and desire. These two emotions are very powerful and destructive if you do not control them, if you allow them to rule over us. Okay, so always you control them, hatred and desire. If we let our emotions rule us, and if we don't control them, surely fire and ice will bring the world to a disastrous and catastrophic end. One day the whole world is going to meet the disastrous end if we do not control these powerful emotions, hatred and desire. Okay, now I am telling you the poem Fire and Ice. First of all, I will read the poem, I will recite the poem, okay, from the beginning to the end, and then after I will come to the difficult words, and afterwards I will explain word for word. Fire and ice. Some say the world will end in fire. Just to listen to it. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. First of all, I want to tell you that there are two types of meaning of words. ओके, पोइट्री में दो तरह की मीनिंग होती है. एक सिंबॉलिक मीनिंग होती है और एक लिटरल मीनिंग होती है. लिटरल मीनिंग का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, मीन्स डिक्शनरी मीनिंग. और फिगरेटिव मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब होता है लाइन मीनिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब अंडरलाइंग मीनिंग. आपको उसको दूसरा अर्थ लेना पड़ता है. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर फायर का मतलब लिटरल मीनिंग से नहीं है. वैसे लिटरल मीनिंग लोगे तो फायर मीन्स क्या हो जाएगा, फ्लेम्स, आग.
और आइस का लिटरल मीनिंग क्या होगा, स्नो, ओके, फ्रोजन वाटर। बट हियर द मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट। यहाँ पर फायर का मतलब है डिजायर, अंडरस्टूड, सिंबॉलिक मीनिंग, और आइस का मतलब है हैटेड। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये पोएट का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी भी वर्ड को अपने हिसाब से उसको सिंबलाइज कर सकता है, अंडरस्टूड। कुछ लोग फायर को जो है कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करते हैं और कुछ लोग फायर को क्या करते हैं, नेगेटिव वे में। जैसे यहाँ पर इस पोएट ने फायर को नेगेटिव सेंस में यूज किया है, अंडरस्टूड, डिस्ट्रक्टिव सेंस में यूज किया है। जबकि कुछ पोएट होते हैं वो फायर को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करते हैं, अंडरस्टूड। जैसे मैं बोलूँ फायर, फायर ऑफ नॉलेज, फायर ऑफ लर्निंग, फायर ऑफ क्यूरियोसिटी। ये कौन सी फायर है, ये फायर वो है, ये फायर वो है जो आपको बिल्ड करेगी। लेकिन यहाँ पर फायर का मतलब क्या है, दैट लीड्स टू द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, ओके। फायर एंड आइस बोथ आर यूज इन द पोएम एज ए डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, ओके, एज डिस्ट्रक्टिव वेपन्स और एज डिस्ट्रक्टिव इमोशंस और पैशंस। इट्स क्लियर। Now I am telling you the difficult words first. Difficult words here are, I think that there are only 2 or 3 difficult words are there. Otherwise, the rest of the words are very common. You know, everyone knows. Okay. So first of all, I thought that a little bit difficult word is perish. Perish means destroy, decay. Okay. Perish means destroy and decay. And one more difficult word is there, suffice. Suffice, it is a verb, and suffice means to be sufficient, मतलब enough. Okay, and the rest of the words is I think that very fairly easy. Some say, now I am explaining word for word. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया वो फायर से नष्ट हो जाएगी। अब मैंने फिर से बोला कि यहाँ पर फायर का मतलब है सिंबॉलिक, अंडरस्टूड। यहाँ पर जो है फिगरेटिव मीनिंग है। लिटरल मीनिंग लोगे तो क्या हो जाएगा कि पूरी दुनिया में आग लग जाएगी और पूरी दुनिया आग से जो है बर्न हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, ओके। इट्स आई थिंक इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, ओके। ये है क्या, एक सिंबॉलिक वे में है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने डिजायर को भी टेस्ट किया है, मतलब मैंने डिजायर का एक्सपीरियंस लिया है। डिजायर बड़ी खतरनाक चीज़ है, मुझे पता है डिजायर बहुत पावरफुल चीज़ होती है, अंडरस्टूड। इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट डिजायर देन डिजायर। डिजायर अच्छी चीज़ है, नो डाउट, डिजायर बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप और डिजायरस हो जाते हैं, जब आप और एम्बिशस हो जाते हैं, तब ये क्या बन जाती है, डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। ये वेपन जो आपका डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, अंडरस्टूड। तो डिजायर होना चाहिए कंट्रोल डिजायर, अंडरस्टूड, तब तो ये बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर को भी टेस्ट किया है, मतलब मैंने डिजायर को फील किया है, डिजायर की ताकत को मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। होल्ड विद का मतलब होता है अग्री विद, मैं अग्री करता हूँ उनका जो फेवर करते हैं फायर का, कि फायर से पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिएगा पोएट ने आई शब्द का यूज किया, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन है। और जब पर्सनल प्रोनाउन का पोएट यूज करता है, इसका मतलब पोएम कौन सी कैटेगरी में आएगी, वो सब्जेक्टिव पोएम होगी। कौन सी पोएम होगी, वो सब्जेक्टिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोएम, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि वाई, बिकॉज द पोएट इज यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन आई फॉर हिमसेल्फ। इट्स क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। बट इफ इट हैड, बट का देखिएगा ग्रामेटिकल सेंस, यहाँ पर बट का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ कॉन्ट्रेरी हो, हमने जो स्टेटमेंट दिया उसका अपोजिट हम लोग फिर बात कर रहे हैं, तब बट का यूज करते हैं, अंडरस्टूड। और ये क्या है, को रिलेटिव कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय होगी, एक बार तो किससे होगी, फायर से होगी, और दूसरी बार किससे होगी, आइस से। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो हेट है वो सफिशिएंट है पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में, इतनी पावरफुल है, अंडरस्टूड। ये पैसन बहुत ही डेंजरस है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि आइस का जो डिस्ट्रक्शन है वो बड़ा होगा, बहुत ही ग्रेट होगा। ग्रेट मीन्स लार्ज होगा, मैमथ होगा, वास्ट होगा। एंड वुड सफाइस, और दैट विल बी सफिशिएंट, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये, अब यहाँ पर आइस का मतलब क्या हो गया, हेटेड। हेटेड मीन्स किसी को डिसलाइक करना, किसी को जो है आप जो है ये मान लीजिए आप लोथ कर रहे हो, अंडरस्टूड, या किसी के प्रति जो आपकी भावना ठीक नहीं है, तब उसको हेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर डिज़ायर और हेट जो है ये दोनों पैशन है, ये बहुत ही पावरफुल पैशन है। ये आपको जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं। और हेट तो डिस्ट्रक्टिव है ही, लेकिन डिज़ायर ज़रूर आपका जो है कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव, लेकिन यहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहा है पोएट। इट्स क्लियर। अब आप देखिएगा आगे मैं आपको बताऊं कि इनका फिर से मैंने बहुत डिटेल में बताया, फिगरेटिव मीनिंग और लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग, फायर का लिटरल मीनिंग होता है फ्लेम्स, और आइस का होता है स्नो। फिगरेटिव मीनिंग क्या है यहाँ पर, फायर का फिगरेटिव मीनिंग है डिजायर, ग्रीड,
लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, ये सब के सब जो हैं ये फिगरेटिव मीनिंग है फायर के, और ये बहुत खतरनाक है, खतरनाक इमोशन से। अंडरस्टूड। आइस, आइस का होता है हैट्रेड, इनसेंसिटिविटी, इंटॉलरेंस, अनकाइंडनेस एंड कोल्डनेस। और आपको पता है कि कितना इंटॉलरेंस हो रहा है दुनिया में, छोटी सी बात पर जो है इंटॉलरेंट हो जाता है। अंडरस्टूड। टॉलरेंस तो रहा ही नहीं। क्लियर है। तो आपको एक बात बता दूं कि पोइट यहाँ पर मैक्रो लेवल पे सोच रहा है। याद रखिएगा, पोइट का जो एटीट्यूड होता है, पोइट का जो आउटलुक होता है, पर्सपेक्टिव जो लेवल होता है बहुत हाई होता है, वो मैक्रो लेवल पे सोच रहा है। अंडरस्टूड। और ये आप देख सकते हैं माइक्रो लेवल पे भी ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग आसपास में देख सकते हैं कि ये फायर और आइस वो पूरे परिवार को या पूरे आसपास के वातावरण को पोल्यूटेड करने में लगी हुई है, और आप मैक्रो लेवल पे जाओगे तो भी यही हो रहा है। अंडरस्टूड। तो ये दोनों जो है इमोशंस है, दोनों जो पैशंस है, अनब्रिडल्ड अगर हो गए, अनब्रिडल्ड मीन अनकंट्रोल्ड हो गए, तो फिर आपको डिस्ट्रक्टिव वे की तरफ लेके जाएंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। आई एग्री विद द पोइट। अब देखिएगा, इसमें पोइटिक डिवाइसेज है। अब एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि जब भी आप पोइट्री पढ़ो उसको दो सेक्शन में डिवाइड करो। पहला सेक्शन तो क्या हो जाएगा आपका मैटर, मैटर मीन्स सब्जेक्ट मैटर, मीन्स उसमें समरी आ जाएगी, उसमें क्या उसका विषय वस्तु आ जाएगी कि उसमें क्या कहा है पोइट ने। अंडरस्टूड। एक तो मैटर, और दूसरा आप उसको लो मैनर, मैनर मीन्स टेक्निक, टेक्निक, टेक्निक जानते हो, पोइटिक डिवाइसेज मतलब लिटरेरी डिवाइसेज, कि वहाँ पर उसने पोइट ने कौन कौन से मीटर का यूज़ किया है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, राइम स्कीम क्या है, ये सब होते हैं पोइटिक डिवाइसेज। और डिवाइसेज जो है उससे क्या होता है, पोइम में क्या है, एक स्ट्रेंथ आती है। अंडरस्टूड। उसमें ब्यूटीफाई हो जाती है वो पोइम, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है अगर पोइट जो है डिवाइसेज का यूज करता है। अंडरस्टूड। तो ये सब डिवाइसेज है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डिवाइसेज है। और एक और बात बता दूँ कि सीबीएसई में कई बार ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स, व्हाट इज द मीटर ऑफ दीज लाइन्स, ओके, व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोइम. So you should learn in detail, you should learn the poetic devices definitely, okay, otherwise you will be confused, okay, when you are attempting such type of question. पहला है इसमें राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम है इसमें A B C B, ये राइमिंग स्कीम है. राइमिंग स्कीम आप जानते हो कि जब राइम करती है लाइंस, मतलब साउंड जब मैच करती है तो वो राइमिंग स्कीम हो जाती है. इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, आप खुद निकाल सकते हैं राइम स्कीम अगर आपने एक बार प्रैक्टिस शुरू कर दी तो. अंडरस्टूड, क्लियर. और दूसरी बात इसमें एसोनेंस है. एसोनेंस का मतलब होता है वोवल साउंड, जब वोवल साउंड रिपीट हो रही है अंडरस्टूड, या तो सेम लाइन में या फिर जो है डिफरेंट प्लेसेज में एट डिफरेंट वर्ड्स में, तब क्या हो जाएगा, वो एसोनेंस हो जाएगा. एसोनेंस का मतलब होता है वोवल साउंड, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड. यहाँ पर होल्ड एंड दोज, ओ, होल्ड में ओ और दोज में ओ, ये दोनों साउंड क्या कर रही है, मैच कर रही है, और ये वोवल साउंड है, इसलिए क्या हो गया, एसोनेंस हो गया. याद रखिएगा ये एसोनेंस है यहाँ पर. तीसरा है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है द रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड का जब रेपिटेशन होता है तो वो एलिट्रेशन हो जाता है. यहाँ पर देखिएगा द साउंड ऑफ एफ इन फेवर एंड फायर, फेवर एंड फायर, एफ और फायर में एफ, ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रही है साउंड, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है. डब्ल्यू इन द वर्ल्ड एंड विल, डब्ल्यू क्या हो रहा है, वर्ल्ड में और विल में रिपीट हो रहा है. अंडरस्टूड. तो ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो गया. अब है एनाफोरा. एनाफोरा लगता है मुझे आपने शायद सुना नहीं होगा, एनाफोरा बहुत कम जानते होंगे. एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन और लाइन. ओके, जब कोई लाइन रिपीट हो रही है या फिर कोई एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, अंडरस्टूड, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनाफोरा. वो एनाफोरा होता है. याद रखिएगा एसोनेंस में तो और एलिट्रेशन में क्या करते हैं, सिर्फ लेटर जो है वो रिपीट होता है, उसकी साउंड जो है वो रिपीट होती है. लेकिन एनाफोरा में क्या होता है, वर्ड, सेंटेंस या फिर जो है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मतलब भी ये हो गया, वर्ड और सेंटेंस वो रिपीट होता है. क्लियर. तो यहाँ पर देखिएगा सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन 1 and 2. लाइन 1 and 2 में क्या हो रहा है, सम से ये रिपीट हो रहा है. और ये रिपीटेशन क्यों करता है पोइट, इसलिए करता है ताकि उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए. उसको स्ट्रेस करने के लिए, किसी चीज़ को जब स्ट्रेस किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, तो फिर एनाफोरा का यूज करते हैं पोइट. यस. अब है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का भी यहाँ पर यूज हुआ है. पर्सोनिफिकेशन एक बार आपको बता दूँ शॉर्ट में. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण. मतलब ये है कि जब आप नॉन लिविंग को लिविंग की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं ना, अंडरस्टूड, किसी में लाइफ नहीं है लेकिन आप उसको लाइफ दे रहे हैं अपने इमेजिनरी से, तब वो क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन. अंडरस्टूड. इट मीन्स दैट टाइम यू आर पर्सोनिफाइंग द ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट हैविंग लाइफ बट यू आर ट्रीटिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फुल ऑफ लाइफ.
ओके तो वो पर्सोनिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दूं कि मान लीजिए सपोज करो ओ क्लाउड्स, ओ यू कम टू मी, आई वांट टू वेलकम यू, ओके। मान लीजिए फिर दूसरा आप कहो ओ फ्लावर्स यू आर डांसिंग, ओके। सपोज करो कि फ्लावर वो ब्लूम कर रहा है, तो एक कॉमन आदमी तो क्या कह रहे फ्लावर इज नाउ ब्लूमिंग, लेकिन जो एक पर्सन ऑफ लिटरेचर क्या बोलेगा, ओ फ्लावर्स आर नाउ डांसिंग, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फ्लावर्स आर नाउ स्माइलिंग, फ्लावर्स आर ऑल्सो लाफिंग। मतलब उसको क्या करेगा, पर्सोनिफाई कर देगा। अंडरस्टूड। जैसे मान लो ओह रेन यू आर हाउ मच यू आर डांसिंग, यू आर टुडे वेरी हैप्पी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पर्सोनिफिकेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर फायर एंड आइस बोथ आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, दस द पोइट पर्सोनिफाइज फायर एंड आइस बाय गिविंग देम पावर टू डिस्ट्रॉय एंड डिके। दोनों के दोनों क्या है, ये पावरफुल है और ये पूरी दुनिया को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देते। तो लेकिन पोइट कैसे यूज कर रहा है, इनको पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज कर रहा है। अब देखिएगा लास्ट में मैं आपको एक बताऊँ, ये थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन है वो अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, सर्कमलोकेटरी होता है, मतलब वो वर्ड का थोड़ा डिफरेंट यूज करते हैं। जैसे थीम की जगह उन्होंने यूज कर लिया सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया की जगह जीस्ट हो गया, जीस्ट की जगह मान लीजिए क्रुक्स कर देंगे, CRUX क्रुक्स। तो ये सारे इन सब का मीनिंग एक ही होता है, थीम। अंडरस्टूड, क्लियर। अब थीम देखिएगा यहाँ पर क्या है, अनब्रिडल्ड पैशंस एंड इमोशन। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड पैशंस एंड इमोशंस विल डिस्ट्रॉय द होल अर्थ इफ़ वी लेट देम गवर्न अस। याद रखें, इफ़ वी लेट देम गवर्न अस, हमें उनको अलाउ नहीं करना हमारे ऊपर गवर्न करने के लिए, हमें पैशंस को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। एज बोथ फायर एंड आइस आर पावरफुल एंड पोटेंशियल, दोनों के दोनों क्या है, बहुत ही पावरफुल है। ये दोनों पैशंस हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही स्ट्रेंथफुल है। अंडरस्टूड, रोबुस्ट है अगर मैं कहना चाहूँ तो ये बहुत ज़्यादा रोबुस्ट है। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई वांट टू अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट बर्न इन द फायर ऑफ लस्ट, in the fire of insensitivity, in the fire of desire. Please don't be so much desirous, over desirous, otherwise this will lead to the destruction. Okay, and one more, that please do not allow the emotions, okay, like hatred, that will lead to the destructive way. Please don't do like that. Okay, love each other, like each other. Okay, have kindness, have merciful patience with you. Definitely this world will be one day very very beautiful, very very okay, full of beauty, full of joy. Okay, and at the end I wish you all the best. Thank you so much watching this video. Hello my dear and